Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Online Civil Simple Learning. So previous class we have discussed the water supply system, water supply scheme, rainwater demand and fire demand and population forecasting two method, only formulas. So today's class we have discussed the population forecasting method, the four important method, the formulas and how to implement that formula into problems, into solution the population forecasting problem. So in this class we have to solve the problem of population forecasting and also solve the problem of fire demand, because there are some formulas in fire demand, so we have to solve the problem according to the fire demand formulas. So let's start the topic of today, that is problem solved of fire demand and population forecasting method. So I want to share the PPT with you. So wait. Okay. Okay, this is your slide. The topic is, today's topic is population forecasting and solving the problem of fire demand. So before going to this problem practice, we have to go to some formulas. Actually, we have discussed only the three formulas of fire demand, and now again I will say the some formulas of fire demand. According to this formula, this formula, we have to solve the problem. So at first the first the first fire demand formula is, the first formula is your Kuchling's formula. There is the basic 5 formulas. The first formula is your Kuchling formula, and the Kuchling formula, according to the Kuchling formula, the formula is your Q equal to 3182 root over of P. And here this is the constant, is the numerical constant, and P is your population of that area per 1000. Means
जेते पॉपुलेशन से एरिया रे देइथिबो जदी कोनोसी फायर डिमांड पई क्वेश्चन देइथिबो कि मागिथिबो कि फायर डिमांड रे केते वाटर तुम क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज होउची डिमांड होउची आगु कैलकुलेशन करो तो देइथिबो जदी पॉपुलेशन तो जो पॉपुलेशन देइथिबो ताको हमको डिवाइड बाय 1000 करबा को पड़िबो माने जते पॉपुलेशन पर 1000 हिसाब रे हमको पॉपुलेशन एठी नबार अछि तेणु जदि भी मागिथिबो से पॉपुलेशन 10000 तो हमको एठी पॉपुलेशन केते नबार अछि ना 10000 पर 1000 ठीक अछि तो पर 1000 रे बेसिकली आमे फायर डिमांड हिसाब करू फायर डिमांड पाई केते वाटर यूज हबो डिमांड हबो ताको हमें कैलकुलेशन करछु बा यूज करछु ठीक अछि तो आकु नै कि हमें प्रॉब्लम नेक्स्ट आकु करबा प्रॉब्लम तो ता पूर्वरु कहि रखे सब फार्मूला गुडा को सब कहि रखे देन इज योर फ्री मेंस फार्मूला is your free men's formula q is equal to 1136 divided by p by 5 plus 10 here q अच्छा q रो लिमिट केते ना लीटर पर मिनट q रो फार्मूला q रो यूनिट केते लीटर पर मिनट then next को आसीबा हमें कोन फ्री मेंस परे थर्ड इज योर बोस्टन फार्मूला बोस्टन फार्मूला केमती सेमती का कहता हबो q is equal to 5663 root over of p is same here p is always same population per 1000 okay per 1000 ठीक अछि तो देन फॉर 4 नंबर फार्मूला कोन नेशनल bound of fire under this is board not bound this is board national board of this is not bound board this is board this national board of fire under 1 minute under writers formula तो आप आई फार्मूला कोन 4637 root over of p into 1 minus 0.01 root over of p ठीक अछि या पाई होउ तुम्हारा फार्मूला आ गोटे लास्ट को रही होउ तुम्हारा मैनुअल फार्मूला जोटी के रिमोट विलेज जोटी की पॉपुलेशन लेस देन पॉपुलेशन मींस 50000 ऊपर को जोटी हला तो से जगह इट इज द मैनुअल फार्मूला अर्बन एरिया रे नॉट द रूरल अर्बन एरिया रे पॉपुलेशन जोटी 50000 टू अधिका थिबे अर्बन एरिया रे ता पई तुमरो फार्मूला होची p is equal to 100 root over of p p that is not p that is q ठीक अछि 100 root over of p so this is I think not so required only this four formula is very important one is your Kuchling formula free means Boston and national board of fire underwriters formula तो ये जो चारिटा फार्मूला मु कहली
So you have to solve the problem according to these formulas. तो नेक्स्ट हम देखिबा कोन ना जो फार्मूला जो कहली तुमको जते फार्मूला कहली ता बेसिक रा हमें ता अकॉर्डिंग रा हमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिबा. देन फ्री फायर डिमांड रो प्रॉब्लम करि साला परे we have to move on the population forecasting method, that is the important of the water demand subject in water supply system. Okay, this is the main topic and this is the main formula and this is the main problem also. Okay, this is the population forecasting. Then हमें देखिबा एठी प्रथम क्वेश्चन देखिबा एठी हमें क्वेश्चन नंबर 1 according to the fire demand problem को सॉल्व करिया पई क्वेश्चन नंबर तुमरो 1. ठीक अछि. तो क्वेश्चन इज योर फाइंड, प्लीज राइट find out the fire demand, find out the fire demand for the town having population 4 lakh by using Kuchling formula. So here the formula is same. Formula is only root over p. There is in every fire demand problem there is the root over p. P is common. Here is only the p by root over 5 plus 10 and another one is 5663 root over p. And in this these formulas, the Kuchling is the best formula to find out the fire demand. So here only we discuss actually जते कि सब फार्मूला दिया है मैक्सिमम रे तुमरो 4000 पर 1000 दिया है पॉपुलेशन टा. तो सही हिसाब रे देखिबा को गले हमें गोटे प्रॉब्लम केमिति पुट करिवार अछि, केमिति तुमरो जते कि डाटा देछि ताको केमिति पुट करिवार अछि जानि गले नेक्स्ट फार्मूला भी हमें सेमति का बाहर करबो. तो according to this question we have to find the fire demand according to the Kuchling's formula. Okay, let's do the solution. ठीक अछि. एठी कते दैछि फायर हमको फायर डिमांड बाहर करिया को पड़िबो. ठीक अछि ना, फायर डिमांड ला. तो पॉपुलेशन हमरो कते दैछि 4 लाख. ओके, 4 लाख. तो 4 लाख पॉपुलेशन 4 लाख पॉपुलेशन रे हमको कुचलिंग फार्मूला अनुसार केते फायर डिमांड, केते क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग फॉर फायर डिमांड ताको हमको बाहर करिया को पड़िबो. तो हमरा फार्मूला कोन थिला कुचलिंग रा पूर्व देखिजे फार्मूला कोन थिला 3182 रूट ओवर ऑफ 5 सॉरी p रूट ओवर ऑफ p. तो एठी हम लिखि परिबा कते 3182 रूट ओवर ऑफ p. अच्छा, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट p कौन थिला ना पॉपुलेशन पर थाउजेंड थिला. तो पॉपुलेशन पर थाउजेंड माने केते एठी p केते हबो ना जति की पॉपुलेशन देछि डिवाइड बाय 1000. पर 1000 मींस जति की पॉपुलेशन से एरिया रे देथिबो डिवाइड बाय 1000 पर 1000. तो एठी हमें तीनटा शून्य काटि देले ताले केते हला 400. पॉपुलेशन एबे केते हला 400 माने हमें 1000 पिछा केते वाटर डिमांड होउची फायर डिमांड पाई ताको हमें कैलकुलेशन करिवो पर 1000 रे. तनो एठी जो पॉपुलेशन मैक्सिमम पॉपुलेशन देछि 4 लाख ताको हमें डिवाइड कर देलु का सहित
1000 सहित because it is the per thousand population per thousand. So we divide the total population up to 1000. Then we got what? 400 population here, the 400 population. Then we put this into our formula. Here is the formula: Q equal to 3182 root over of 400. So what is your answer? Please use your calculator. This is a calculator. Use your calculator and calculate this. 3182 root over of 400 equal to 63640 liter per minute. Actually that is not 6, that is 0. Okay na, that is 0. So 63,640 liter per minute water is demand for fire demand. Water is demand for fire demand. Okay, so in this way other formulas also we apply also this into other formulas. According to that Kuchling formula, you understand? Simply nothing. Q is equal to 3182 divided by P. What is your P? 4 lakh divided by 1000. Cancel. This is 400. Then 3182 root over of 400. That is answer is what? 633,640 liter per minute. Okay. Then next to your Boston formula. That is the another one is important formula. Boston formula. According Boston formula, the formula is also same. 5663 root over of P. So 5663 root over of 400. What is your answer? $11,3260 liter per minute. So this like तो एमती का आम प्रत्येक जी फर्मुला पॉपुलेशन को एमती पकई पकई गले आमर कैलकुलेशन रे डिफरेंट देखिए डिफरेंट वैल्यू आर शोइंग इन दिस कैलकुलेशन किंतु मेनली आमे करेक्ट जोटा नबा यूज करा जाए दैट इज कुचिलिंग फॉर्मूला और मोस्टन फॉर्मूला सब आमर मेनली बेसी यूज करा जाए टू कैलकुलेट द फायर डिमांड ऑफ द एरिया ऑफ दैट एरिया ठीक अछि आ गोटे जो फॉर्मूला कहली जो अर्बन एरिया रे मींस लोक संख्या जदि अधिक थिबे पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 50,000 तो सेठी हमरो यूज करा जाय कोन दैट इज अ मैनुअल फॉर्मूला P इज इक्वल टू 100 रूट ओवर ऑफ Q इज इक्वल टू 100 रूट ओवर ऑफ P ओके रूट ओवर ऑफ P ओके रूट ओवर ऑफ P आपको भी यूज करा जाय किंतु बट this formula is very important. This two formula is very important. That is Kuchling formula. According to Kuchling formula, we have to calculate the fire demand maximum time. So here is the main formula of the fire demand. Okay. Then okay, understand? No problem. किछि नाही एठी केवल हमको population केते अछि divide by 1000 करिवार अछि जत्ते की बाहरला ताकू हमको से population जो जगह लिखा आइछि जो फॉर्मूला रे दिया आइछि रूट ओवर P या P/5 से जगह हमको से पॉपुलेशन को पुट करिवार अछि ता छोड़ा आउ किछि हमको नाही केवल से पॉपुलेशन को हमको पुट करिवार अछि देन यूज द कैलकुलेटर एंड गेट द आंसर ओके देन नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारो कोन आछी नेक्स्ट टॉपिक दिस इज द फायर डिमांड important it is also important for your study for your water supply system
This is the important. Okay. Okay. Then next आसुची कोन ना very very important. Next कोन आसुची very very important. What is population forecasting method? Okay, the population forecasting method is used to calculate the future approximate future population on that a given area. जो area रे आमे water supply design करिबार अछि सेठी हमकु after some 2 to 3 decade what is the future population, approximate future population of that area, we have to calculate that. So this method is called population forecasting method. This method is called population forecasting method. So there is some formulas. Here the quantity should be worked out with the due provision for the estimate requirement for the future. The future period for which a provision is made in the water supply scheme is known as design period, and this design period and this future population is calculated by the population forecasting method, which is very very important. And this population forecasting method have so many methods, like 8 methods, but there are the 4 methods are very important. Okay, 8 method, which is one is your arithmetic increase method, geometric increase method, incremental increase method, decreasing rate of growth method, then simple graphical method, comparative graphical method, and ratio method, and last one is logistic curve method. But here these 4 method are very very important. So at first we have to see arithmetic increase method. So this method gives us the lowest value. This method gives us the lowest value of population forecasting. So because of the lowest value, so this method is meant for old cities or developed cities. Developed cities. काहेकि ना आमे जदि देखिबा डेभलप सिटी बा ओल्ड सिटी मान करे ऑलरेडी लोक माने एस्टाब्लिश थांती, काहेकि ना सेटा ऑलरेडी डेभलप हेई ताई, सेटी विभिन्न प्रकार धर कोन से जगह रे कंपनी अछि, तुम्हारा फैक्ट्री अछि, तो से जगह रे ऑलरेडी डेभलप हेई ताई, तो सेठी जो लोक माने रही थांती काइना सेठी कर्म जतिकी रोजगार लोक माने बेसिकली सिटी विलेज एरिया रिमोट एरिया छाड़ी की सिटी किंबा टाउन मान को कोन पाई जाती फॉर देयर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, किछि रोजगार पाई, ठीक अछि। तो से रोजगार पाइबा पाई जो जाई थांती, तो ओल्ड सिटी जे गुडा को बहुत पुराना सिटी हे गलानी, कंपनी अछि, लोक माने सेट वन टाइप ऑफ सिटी सेटल हे गलानी, तो सेही मानकर ही पॉपुलेशन डेवलप हुए। तो बाहरु आ बेसी लोक आसंती नाही, दैट इज द अप्रोक्सीमेट हला, ताको हम कहि परिबा अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट काइन, एवं ताको कोन कहा जाय ना इन दिस मेथड because in this method the growth of population
decade to decade is constant. ठीक अच्छे जेहेतु बाहर एते पॉपुलेशन आसु नाहंती से एरिया रे जत्ते की पॉपुलेशन एस्टिमेट पॉपुलेशन अछि तांकर ग्रोथ होउची तांकर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होउची ठीक अछि तो जेहेतु सेतिक रे तुमरो ग्रोथ होउची पॉपुलेशन तेनु आमे ताकू कोन कहबा the rate of growth of population is here is constant केमिति ना एग्जांपल हमें जदी देख दबा पॉपुलेशन 1930 रे जदी पॉपुलेशन से एरिया रे 25000 थिले 1940 बेल को से 30000 30000 हे गले तो तांको भितरे केते पॉपुलेशन ग्रोथ कला डिकेड वन डिकेड 30 to 40 वन डिकेड मींस 10 इयर्स तो 30 to 40 वन डिकेड तो सी वन डिकेड भितरे केते पॉपुलेशन हाउ मच पॉपुलेशन आर इंक्रीज्ड केते पॉपुलेशन ना 30,000 माइनस 25,000 रोगी 1940 रे जदी 30,000 रहउची 1930 रे सेटा 25,000 ही जाउची ताको भितरे ग्रोथ केते हला ताको भितरे केते बढ़िला पॉपुलेशन ना दैट इज 5,000 पॉपुलेशन आर ग्रोथ इन वन डिकेड ठीक अछि तो आकुई कहा जाय ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो एई मेथड रे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड रे तुमरे जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिकेड टू डिकेड एमिति 30 40 अछि पुनी 50 बेल को केते बढ़िबे 60 बेल को तो ई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ता जो ग्रोथ होची डिकेड टू डिकेड पॉपुलेशन दैट इज अज्यूम्ड कांस्टेंट माने अप्रोक्सीमेट इज कांस्टेंट अज्यूम हमें अज्यूम करिवा दैट इज कांस्टेंट बिकॉज़ this is the old city there is no other way to get the people from outside so that people who are living there these people are these population are growing day by day or decade to decade so for this purpose a purpose pai that area the population growth of population is constant ठीक है growth of population is that area is constant assumed to be constant we have to assume that because this is the not the approximate not the right not the accurate in this population forecasting method we have not to calculate the exact population up to 2 to 3 decade we have to assume we have to approximate that is the approximate value okay we have to calculate एटा हमें कैलकुलेट करूचु हम तळे जनगणना हबो सेतेबेले हम जानिउ जे एक्चुअली तारो लोक संख्या केते बट हियर वी ओनली कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू सो हियर वी कॉल्ड इट द ग्रोथ ड्यू टू द अच्छा काहे की भी कहा गला ना इट गिव्स द लोएस्ट वैल्यू ओके इट गिव्स द लोएस्ट वैल्यू सो ड्यू टू द गिविंग ऑफ लोएस्ट वैल्यू वी कॉल्ड it or we apply it to the old city or developed city where the growth of population decade to decade is constant okay decade to decade is constant so this is called arithmetic increase method okay by this method there is some formula there is one formula arithmetic increase method पाई फॉर्मूला होची फॉर्मूला कौन फॉर्मूला ना pn equal to p naught plus n x bar please note down this formula important formula what is pn Pn is population after n decade माने n decade means we have to calculate that up to 2 to 3 decade तो that 2 to 3 decade माने जत्ती की धरो क्वेश्चन ले देइची 1932 1960 पर्यंत तुम्हारा पॉपुलेशन देइछि
तो मागिची कोन ना कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड माने 60 प्लस 20 2 डिकेड मींस 20 वर्ष 20 इयर्स तो 60 प्लस 20 60 प्लस 180 1980 रो हमको पॉपुलेशन बाहर करिवार अछि तो सही जो बाहर करिवार अछि केते ना 2 to 3 डिकेड परे जो पॉपुलेशन बाहर करिवार अछि दैट इज कॉल्ड the population after n decade that is called means pn where the pn right there is what right there is what now p 1980 p 1980 is written there is p 1980 केमिति का ना क्वेश्चन ले देछि you have to find after 2 to 3 decade 2 to 3 decade परे केते पॉपुलेशन बढ़िले बा अप्रोक्सीमेट केते बढ़िबे तो बढ़िले केते बढ़िले तो जो जहां पाई देथिबो जति डिकेड पाई हमको पॉपुलेशन मागिथिबो क्वेश्चन ले दैट इज द पॉपुलेशन आफ्टर n decade and it is denoted by pn and it is denoted by pn okay understand then p0 or p note what is this p note होची क्वेश्चन ले जते बेले मागी थिबो लास्ट नोन पॉपुलेशन मींस धरो 1930 टू 1980 पर्यंत पॉपुलेशन देइची तो क्वेश्चन ले गिवन अछि कोन 1980 रो पॉपुलेशन गिवन अछि सो दैट गिवन that last known population given population the last given population is known as what last known population this is what last known population okay this is called last known population okay then n what is n ना क्वेश्चन जो देथिबो केते डिकेड पर भाई नंबर ऑफ डिकेड केते डिकेड पर तुमे फ्यूचर पॉपुलेशन वा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पाइबो नंबर ऑफ डिकेड दैट इज नंबर एक्चुअली प्रॉब्लम कले जानि हबो हला खाली कहि दोची प्रॉब्लम कले आपको जानिबा देन x बार दिस इज इंपोर्टेंट एवरेज मु जो कहितली एवरेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो ग्रोथ पॉपुलेशन होतला डिकेड टू डिकेड तार एवरेज वैल्यू व्हाट द एवरेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय x बार ताले फार्मूला कोन हला हमरो pn equal to p naught बा p0 plus n x bar pn what population after n decade p0 हो जो last known population then n is your number of decade then x bar is your average growth of population by average growth rate of population okay understand next आ गया हमें फॉर्मूला गोटे कहिबी तुमको ता अनुसार प्रॉब्लम करबा हला काइना इजी होबो काइना तीनटा को मेथड कहि दिबी चारटा मेथड कहि दिबी ताको ऊपर जदी प्रॉब्लम करबा पुनी मूल को आसीबा पे पड़िबो तो हमें फास्ट जानलो अरिथमेटिक मेथड आउथरे रिपीट कर दोची अरिथमेटिक मेथड इज यूज्ड फॉर ऑल सिटीज बिकॉज़ इट गिव्स द लोएस्ट वैल्यू सो हियर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन decade to decade is constant so this is called the arithmetic population and the formula is here pn equal to p0 plus nx bar pn what pn na population after n decade p0 is last known population which is given to your question paper okay then number of decade also given to your question paper only one is missing that x bar is average growth rate of population decade to decade that's the average value okay then हमें प्रॉब्लम करिबा तो बेसिक क्लियर हे परिबा हला प्रॉब्लम कले बेसिक क्लियर हे परिबा बुझियो कि नहीं
क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज वन थला ना 2 तो क्वेश्चन ले देथिबो तोमरा पॉपुलेशन एपटे देथिबो कोन सॉरी ईयर देथिबो एठी ना ईयर एठी देथिबो पॉपुलेशन ठीक है तो ईयर रे देथिबो 1932 1 मिनट I have to see the question actually. Yes, 1930 रे population देथिबो 25,000 ठीक है ना then 1940 पाई देथिबो that is 28,000 actually I have solved this so I 1950 पाई देथिबो 34,000 ठीक है 1960 पाई देथिबो that is 42,000 okay then 1970 पाई देथिबो 47,000 तो एटा क्वेश्चन रे देथिबो एतिकी ही तुम्हारा क्वेश्चन ले देथिबो ठीक अछि तुमको एठिया कॉलम ऐड करबा को पड़िबो फार्मूला हिसाब ना फार्मूला कोन थिला pn equal to अच्छा ता सहित क्वेश्चन ले देथिबो दैट इज एक्चुअली not completed find the population forecasting up to 2 decade one or 2 decade 1 and 2 decade 1 means we have to find 1980 and we have to find 1990 okay so here is the given the question year 1930 to 1970 and the population also given 1930 to 1970 and here find what is find the population forecasting up to 1 and 2 decade okay formula कोन हमर थिला arithmetic and 1 to decade by using दे दियो क्वेश्चन by using arithmetic forecasting method तो प्रॉब्लम अनुसार हमरा कोन थिला pn equal to p0 plus n x बार तो n भी देछि 1 और 2 डिकेड p हमको बागे कोंटा बाहर करिवार अछि को ईयर रो को डिकेड रो बाहर करिवार अछि दैट इज p1 मींस p 1980 1 डिकेड रो जदी बाहर करिवा 180 रो हमको बाहर करिवार अछि माने लेठी लिखिबा p 1980 रो बाहर करिवार अछि p नोट व्हाट इज p नोट ना लास्ट नोन पॉपुलेशन कोन देछि 47 ना लास्ट नोन पॉपुलेशन कते देछि ना 47 लास्ट नोन 1970 लास्ट नोन तार तापर हमको जणा नहीं 1970 रे जते पॉपुलेशन अछि दैट इज द लास्ट नोन पॉपुलेशन काई ना तापर हमको जणा नहीं तापर मागिछि जे कते बाहर करो तो लास्ट नोन पॉपुलेशन हबो तुम्हारा कोन एठी ना p नॉट 47,000 प्लस n कोन ना गोटे फास्ट हम बाहर करबा गोटे डिकेड रे n नंबर ऑफ डिकेड इनटू केवल दैट इज मिसिंग x बार तो इस साइड रे हम गोटे कॉलम ऐड करबा कोन ऊपर लिखिबा ग्रोथ ऑफ increase in population केते पॉपुलेशन डिकेड टू डिकेड मींस 40 रु 40 केते इंक्रीज होचंती 40 रु 50 केते इंक्रीज होचंती 50 रु 60 60 रु 70 केते हमरो इंक्रीज होचंती तो 30 रे थिला 25,000 40 बेल को हला 28,000 माने x1 लिखिबा माने केते बढ़िले रे 28,000 माइनस 25,000 केते हला 3,000 1930 रु 45 रे पॉपुलेशन ग्रोथ हेचंती आ थरे कहूची 1930 रे जदी 25,000 थिले 25,000 1940 28,000 तो तांको भितरे केते पॉपुलेशन बढ़िले मींस तम पाखरे 2 टका अछि काली को हिगला 4 टका ताहले 2 रुपीस रु 4 रुपीस केते बढ़िला रे 4 - 2 इज इक्वल टू 2 रुपीस सही भलिया 1930 रे थिला 25,000 1940 रे हला 28,000
ताले one decade between the 1930 to 1940, the growth of increase in population what? X1 equal to that 28,000 minus 25,000 equal to 3,000. Next is आकाम सरला 1940 रे 50 पुणी देखिबा सेमिति 50 रे केते हे गला 34 थिला केते 28 कने केते हबो 34,000 28,000 what is what 6,000 सेमिति 50 रु 60 देखिबा x3 थिला केते 42,000 34,000 केते हला 8,000 then सेम देखिबा 60 टू 70 केते थिला x4 केते थिला 47 42 5,000 तो हमें डिकेड टू डिकेड केते पॉपुलेशन इंक्रीज हला सेटा हमें पाई गले केमिति ना जति की डिकेड रो पॉपुलेशन थिला तापर डिकेड रो केते बढ़िला ताकू माइनस कर देला हमें पाई जीवा कोन ना केते पॉपुलेशन तुमरो इंक्रीज हला ठीक अछि जोंडा के हमें कले x1 पाइले x1 व्हाट इज x1 ना ग्रोथ ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिटवीन 150 130 to 150 देन व्हाट इज x2 that is what is x2 the growth of increase in population between 150 to 142 sorry 140 to 150 is your x2 which is 6,000 like x3 is your 8,000 then x4 is your 5,000 ताले हमें x वैल्यू सब पाई गले हमको दरकार x बार मींस एवरेज ग्रोथ किंतु हमें डिकेड टू 130 टू 170 पर्यंत जति की डिकेड टू डिकेड पॉपुलेशन ग्रोथ ही चलती so get that value as x1 x2 x3 and x4 we get that value only we have to find the average value how find the only average increase in population that is x bar तो जदि x1 जदि डिकेड टू डिकेड प्रथम डिकेड रे x1 हला 3,000 x2 6,000 x3 8,000 x4 5,000 आंकर एवरेज केमति के बाहरिबो तम पाखरे 2 टंगा अछि 4 टंगा अछि 5 टंगा 6 टंगा तो एवरेज केते टंगा अछि तो पाखरे 2 टंगा रामो पाखरे 6 सामो पाखरे 6 टंगा तो ताके भीतर एवरेज केमति होबो 2 + 4 + 6 डिवाइड बाय 3 people that is your average money so that's type the year that's way so in first decade x1 is 3,000 like x2 is 6,000 x3 is 8,000 and x4 is 5,000 so what their average value what their average growth of increased population how now x1 plus x2 plus x3 plus x4 divide by 4 because we have here the 4 decade to decade the increase in population is x1 to x4 x1 to x4 x1 x2 x3 x4 so x1 value is 3,000 here right x1 plus x2 plus x3 plus x4 divide by 4 numbers of decade okay 4 number decade रो हमर बाहर छी तो equal to जहा वैल्यू आसीबो what value that is the average increase in population तने x1 कते थिला 3,000 plus 6,000 plus value अरे value से डिवाइड करतले हला okay this value we put this value into next slide okay 3,000 6,000 8,000 5,000 okay we put this value in next slide okay $8,000 plus
here 5000 divide by 4. So put it into your calculator and find the value. 3000 plus 6000 plus plus 8000 plus 5000 divided by 4. What is that value? 5500. I think that is right. Yes, 5500. That is the x bar value. That is the x bar value, which is known as average increase in population. Then we get all of this according to the formula. Only we have to put that on the formula. How? Listen. P0 plus that is our main formula. We have to calculate 1 decade na. So you have to write like this: for 1 decade P1980 थिला देइथिला केते ना 1970 पर्यंत बाहर करिवार अछि 1 decade माने 10 years plus 10 years 180 P1 ने P1980. ओके P1980 रा हमको पॉपुलेशन बाहर करिया अछि. P नोट केते सॉरी P0 नोट जा भी कोइ बताओ. P नोट कोन न P0 कोन ना लास्ट नॉन पॉपुलेशन. दैट इज द लास्ट नॉन पॉपुलेशन. लास्ट नॉन पॉपुलेशन केते लास्ट नॉन पॉपुलेशन कारो P1970 रो हमें वेरे लिखिबा जानि परिबोनी हला. n केते n मींस 1 काई ना 1 डिकेड रो हमें बाहर करछु. आ x बार केते 5500 5005. It is into तारे 1970 हो जो लास्ट नॉन पॉपुलेशन तार पॉपुलेशन केते 47000 प्लस 1 into 5500 is 5500. ओके ताहले हम ताको मिसेले केते हबो 52 सब 5 12 500 52500. This is the future population or population forecasting of 1 decade in given question by using the arithmetic increase method. Okay, then next is your कहते for 2 decade माने कहते 1980 थिला 77. अच्छा एटू गुटे कंफ्यूज आसे बेले बेले काहे ना हमरो जोटा हमें बाहर करचे दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. हमें जानि नहु दैट इज द एज्यूम्ड वैल्यू. किंतु क्वेश्चन जेतु गिवन अछि सेटा ठीक थाउ कि न थाउ दैट इज आवर करेक्ट वैल्यू. काहे क्वेश्चन सेटा गिवन अछि. मु जते बेले 2 डिकेड बाहरिबी मोर लास्ट नॉन पॉपुलेशन 1980 ने भी नहीं काहे ना हमें दैट इज कैलकुलेटेड बाय मी. बट हियर the last non population mu kaha ku nebi we have to put that 1970 population because that population is given to your question. तो मु सेही population को नेबी किंतु 1980 रो population नेबी नहीं काहे ना that is calculated by me. ओके जते बेले मु एटी बाहर करबी 1990 रो 2 डिकेड देछि ना 1990 रो सते बेले लिखिबी P9070 प्लस 82 डिकेड हे जिवो 2 डिकेड ठीक है ना 2 डिकेड हे जिवो समिति 47000 प्लस आगु गुण लगते हबो 2 into 11,000. ओके 11,000 तो that is 58,000. ओके ना 58,000 यस राइट 58,000. ताहले आमे जानी गले एज पर द क्वेश्चन कोन मागिथिला ना कैलकुलेट द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग आफ्टर 1 and 2 decade by using arithmetical method increase method. So arithmetic increase method को पुट करके हमें कौन जानले ना
1980 रो पॉपुलेशन एवं 90 रो 90 पॉपुलेशन आउ थरे रिपीट कर दोची आमे कोन कले फार्मूला कोन थिला अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड अनुसार फार्मूला थिला pn equal to p naught plus n x bar pn कोन ना पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड क्वेश्चन ले जहा देइथिबो तार पॉपुलेशन टाकू बाहर करबा जोटा बाहर करिया पई देइथिबो सेठी हमें डिनोट करबा व्हाट pn population after n decade then p naught is your last known population क्वेश्चन ले जोटा गिवन थिबो लास्ट known population सेटा कोन ना p naught जोटा क्वेश्चन ले लास्ट रे जोटा population year देइथिबो एवं तार population देइथिबो that is the last known population not confused last known population then what is n the number of decade what a question ले जते decade रो population आगो को फ्यूचर को बाहर करिवार अछि देइथिबो क्वेश्चन ले बाहर करिवा पाई that is number of decade then what is x bar the average growth rate of population or average growth increase in population decade to decade जति की decade देइथिबो प्रत्येक decade to decade केते population हला बढ़िला एवं से इंक्रीज जो हला तांकर एवरेज केते तो हम एटी क्वेश्चन नेथिलु ईयर नेथिलु 1930 टू 1970 पॉपुलेशन भी नेथिलु तापर एटी हमें जेहेतु हमको सब जणा थिला केवल x बार जणा नथिला हमें x बार को बाहर करिया पई ग्रोथ x बार कोन थिला ना एवरेज ग्रोथ ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो हमें प्रत्येक डिकेड रो ग्रोथ ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन को बाहर कलु केमिति ना 1940 रे जते पॉपुलेशन बढ़िले 1930 रे आगे आगुरु जते थिले फर्स्ट डिकेड रे जते थिले सेकंड डिकेड बेल को जते बढ़िले सो देटा पॉपुलेशन को माइनस कर देले दुईटा पॉपुलेशन को डिफरेंस बिटवीन द टू डिकेड ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज ग्रोथ और इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो ई परि भाबरे हमें प्रत्येक जतिकेटा डिकेड तुमरा क्वेश्चन ले गिवन थिबो ताको हमें बाहर करतला परे हमर चारिटा बाहरला केते पॉपुलेशन बढ़िले ताको हमें कोन कले तार एवरेज बाहर कर देले इजी प्रोसेस एवरेज बाहर करा पे इजी प्रोसेस x1 x2 plus x3 plus x4 divided by 4 जतटा थिबो equal to put these values and get the average is 5500 then for one decade पई देछि माने गोटे डिकेड पई तो हम एटी पुट करबा 1970 अच्छा 1970 काहे की ना एते की पर्यंत हमर क्वेश्चन गिवन अछि लास्ट रे जो ईयर देछि एवं ईयर रे पॉपुलेशन देछि दैट इज योर लास्ट नॉन पॉपुलेशन तेणु हम एठी लिखले 1970 काहे की म कहिछि ना p नोट इज योर लास्ट नॉन पॉपुलेशन p नोट घुसी दियो p नोट इज योर लास्ट नॉन पॉपुलेशन माइंड इट लास्ट नॉन पॉपुलेशन क्वेश्चन जहा थिबो लास्ट को सेटा ही लिखिबा लास्ट ईयर रे पॉपुलेशन जते थिबो दैट इज द लास्ट नॉन पॉपुलेशन हम एठी लिखिबा प्लस n decade given the n decade into 5500 what 5500 that is x bar average growth increase in population equal to 12500 ako message la jana palla 12500 सेमिति 2 decade पई भी कते p 1990 equal to p 1970 plus 2 into 5500 सेमिति 2 काहे की नंबर ऑफ डिकेड 2 कना दीटा 10 20 वर्ष परे टाटा तला 10 वर्ष परे वन डिकेड सेमति जदि 3 हितांता ताले p 2000 हितांता एडी गुणा हितांता 3 एडी गुणा हितांता तुमरा 3 ए जगह रे 3 ठीक अछि ए जगह रे 3 गुणा हितांता इनटू करा हितांता 3 तो जत्ति की डिकेड देतिबो से n जगह रे तुमे सेटा पुट करिवो ताले तुमरा एटी आंसर आसला कोन पॉपुलेशन आफ्टर 1990 कते 58,000 so this is the easy method this is the very easy method but it gives the lowest value so it is used for only old cities ठीक अछि तो हमें गुटे मेथड विषय आज पूरा डिटेल्स पढिलु जोटा की अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड तारा प्रॉब्लम भी कलु हमें नेक्स्ट क्लास रे हमें कोन करिवु नेक्स्ट मेथड को आसीबु जोटा की ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड आई थिंक हाँ तापर इंक्रीमेंटल अच्छे ठीक अच्छे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड करिबा तापर हमें इंक्रीमेंटल को जीवा ठीक अच्छे तो आज हमें एतिकी स्टॉप करिबा कहीं ना प्रॉब्लम भी कलु हमें प्रॉब्लम विथ फार्मूला
केमती इंप्लीमेंट करा गला फार्मूला को प्रॉब्लम रे. So next class we will discuss the next formula of population forecasting, that is geometry increase method, and we have to use that formula into our problems. Okay, into our problems. So next topic रो हम start करिबा next method रो. So till then thank you and goodbye. And चैनल को यदि भल लागला लेक्चर ठीक ठाक लागला तबे कमेंट करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करिवे. So this is only for the diploma and BTech student because it's a very important chapter, and it is this is the syllabus for the Odisha syllabus. Okay, this syllabus is based on the Odisha syllabus. Odisha means BPUT and SCTVT syllabus. Okay, ako even tomorrow competitive exam पाई भी यूज करा जाय पारिबो काहे ना सेम मटेरियल इज सेम, टॉपिक इज सेम, फार्मूला इज सेम. तो आको जे कोनसी आगारे तुमे ए वीडियो माने देखले भी तुमे पढी पारिबो. ओके, तो आज पई एतिकी. नेक्स्ट टॉपिक रो हम स्टार्ट करिवा हमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड रे कोन ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड. दैट इज आल्सो अ वेरी इंपोर्टेंट मेथड. So till then thank you and goodbye. Like, subscribe, like and share my channel and comment also. Thank you. Good night.